Yeah, so I was already engaged in that year. And not that there's anything with getting married, but it was my normal decision. But at the Brahma Kumaris, when you want to practice soul consciousness, celibacy plays a very important role in that. It really helps you. जो 5 vices होते हैं ना, उसमें lust पहला vice होता है. So it's काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार. So lust is the first vice. उसके ऊपर बाकी सारे vices आते हैं. So if you want to finish those vices and rise in your vibration, you have to finish the first one. तो वो मुझे पहले से ही पता था. But फिर मेरी marriage तो fix हो गई थी. और फिर मुझे वहाँ जाके अच्छा लगने लग गया. और उस साल के अंदर I came here also to Mount Abu. Okay. So I came here that took it to another level altogether. So I said नहीं अब मुझे नहीं करनी. I said अब मुझे शादी नहीं करनी. Now I really want to live this life. You know, it just अगेन कुछ हुआ नहीं था. It's just कई बार just कोई चीज़ ऐसे coming from within क्लिक हो जाती है कि नहीं बस this will not be right. ये करना ठीक नहीं होगा. Because फिर मेरी पूरी जीवन है ना उसके बाद. Arranged marriage हो रही थी आपकी? हाँ, my husband's mother had come to our place, but we knew each other, but it was arranged, it was fixed. But it was just 2 months left for the shadi. And you realized this? Yeah, it was in November. I had to get married in January, and everything was fixed and distributed, and everything was done. But I just said like नहीं. Again, there also I became very ziddy कि नहीं मुझे नहीं करनी है. But then Vishal, who's my husband now, he said ऐसे नहीं करते. सब fix हो गया ना. सबको सब कुछ पता है. That's it. बस चुप करो, आराम से करो, lead your life. And I got married in January. And that's now going to be 28 years. You've been married, but you don't live with him. Of course I live with him. You live with him? Of course. But you practice celibacy? Right from day one. Wow. Right from day one. Of course I live with him. I live at home. But living on those principles of celibacy. People have such a big myth in this world. कि ये रिश्ते के लिए वो चीज़ इतना ब्यूटीफुल रिश्ता है, इतना ब्यूटीफुल रिश्ता है, मतलब सच्ची में मैजिकल रिश्ता है. Absolutely, this is really like two souls coming together. It's right? so beautiful. मतलब that. इतनी अच्छी हार्मनी क्रिएट होती है. पता नहीं लोग that's what you know, vices आपके माइंड के ऊपर इतना हावी हो जाते हैं कि आपकी सोच बिल्कुल एक अलग डायरेक्शन में चली जाती है. Now that you are looking at what is going on now, right. तो now तो that lust is not remaining only in that one relationship. अब तो because वो एक addiction है ना, बिल्कुल वो एक addiction है. और जितनी soul power कम होती जाती है, आपकी वो addiction आपके ऊपर हावी हो जाती है. बिल्कुल. तो फिर loyalty का concept, trust का concept, वही अब हिलता जा रहा है. टॉकिंग ऑफ इंडियन सोसाइटी, वो हमेशा सोचते हैं शादी करो, बच्चा करो, एक नॉर्मल जिंदगी जियो. पर अगर कोई बोल दे कि नहीं मुझे बच्चा नहीं करना या मुझे शादी नहीं करनी, पेरेंट्स फील अरे ये क्या हो गया. इवन इफ इट इज ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी. Yes, we see it every day at the see center. it every day. You have to see from the parents' perspective also. कई बच्चे बहुत carried away हो जाते हैं. शुरू में आते हैं, आए, बहुत अच्छा लगा, कहा नहीं नहीं हमको शादी नहीं करनी है, हमको यहीं रहना, ये करना है. पर थोड़े साल के बाद अपनी जर्नी पर ठीक से फोकस नहीं किया. फिर ना यहाँ फिट हो रहे थे, ना बाहर जा रहे थे. फिर डिसकंटेंटमेंट आ रही थी, क्योंकि जब तक आप डेली स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स और वो मेडिटेशन नहीं करेंगे, यहाँ कंटेंटमेंट नहीं आएगी. और अगर यहाँ से नहीं आई, फिर बाहर की खींच आएगी. कुछ तो चाहिए ना हमें दोनों में से. फिर वो जब एज क्रॉस कर लेते हैं, फिर वो अपने पेरेंट्स को जाकर कहते हैं अब हमें शादी करनी है. तो वो पेरेंट्स के लिए डिफिकल्ट हो जाता है. सो वी अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव ऑफ एवरी पेरेंट, क्योंकि आप समाज में सुनोगे कि भाई इनका बच्चा गया, ऐसे हो गया. सो दैट इज वाई the individual has to be very clear. But you're saying शादी नहीं करनी चाहिए अगर if you're a part of not at all. यहाँ आप सबको जो देखेंगे वो तो शादी करके आए हुए हैं ना, सारे बच्चों के साथ भी आए हुए हैं. लेकिन जो सरेंडर होते हैं, जो सेंटर संभालते हैं, and they can't lead family life and center because they have agreed to live at the center. उन्होंने वो सेवा को चूज किया है. So then they come and they surrender. Then they only go home जब कोई जरूरत है, कोई बीमार है, या साल में एक बार उनको अपने पेरेंट्स से मिलने जाना है, या कभी भी पेरेंट्स को जरूरत हो, दे कैन गो. बट दे हैव चोजन टू लिव एट द सेंटर. तो वो ही आएंगे. तो दैट इज अ रूल कि अगर आपने शादी की, आप अपना घर छोड़ के नहीं आ सकते यहाँ रहने के लिए परमानेंट. यू विल नेवर गेट सरेंडर, क्योंकि यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर फैमिली. आप अपना घर तोड़ के छोड़ के यहाँ नहीं आ सकते. दैट्स डन.